Hello students. In the last video we have discussed how to convert the given word problem in the form of quadratic equation, then after that how to use the formula method, then how to use that formula method and how to find out the solution, or we can say the roots of the given quadratic equation by using the factorization method. That time I told you, in the last video only I told you that factorization method is not compulsory in that example. You can use different method also, and that different method we are going to study today onwards. Here I have written heading, you will come to know that solution of a quadratic equation by using the quadratic formula. Means now today we are going to discuss about the quadratic formula method. But before that, this method is having one formula. In that name only you will understand quadratic formula. Okay. Then what is this formula? How this formula is derived? Before that I am going to tell you, I am going to explain, I am going to elaborate front of you, because this formula is also very important. This year syllabus is little eliminated, 30% syllabus is deducted. That's why they may ask any type of proof, they may ask this formula proof also. That's why I am feeling that this is also very important proof. I am going to start this, listen and try to understand how this proof or how this formula is derived. The method name is quadratic formula. Okay, listen. Proof. As you know that very well, the standard form of a quadratic equation, that standard form of a quadratic equation we are going to use here, and by using that standard form of a quadratic equation we will derive this formula. This is very simple formula, but some changes we are going to do, some points we are going to add in this formula while giving the proof of this formula. Okay, that you try to understand, you will come to know that how this formula is derived. Okay, listen here. First of all, I am going to consider here a standard form of a quadratic equation. Instead of that, you can say, let us consider a quadratic equation. That is also correct. Okay, that we will use. I am going to start, listen. Let us consider a quadratic equation. Let us consider a quadratic equation. Otherwise, you can write, let us consider a standard form of a quadratic equation. Let us consider a quadratic equation. You know that very well, standard form, ax square plus bx plus c is equal to 0. Here one important thing is that a is not equal to 0. Means here we have considered one quadratic equation. Here ax square plus bx plus c is equal to 0, but a is not equal to 0. Are you getting? Okay. Now what we will do, look here. We will divide this equation by a. This is the first step of this proof. Dividing above equation by a, we get, dividing above equation, dividing above equation by a, we get, divide this equation by a. First of all, I will divide, look here. Dividing means we have to divide LHS and RHS both. X square plus bx plus c divided by a is equal to 0 divided by a. Therefore, okay, now what we will do, look here. We will divide each term, x square divided by a plus bx divided by a plus c divided by a, and 0 divided by any number means anything, means what? 0. Okay, got it up to this step. Okay, now look here, a will get cancelled, then what will remain? X square divided by समथिंग विल रिमेन. इधर देखो क्या हुआ, ए कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ इधर देखो, ओनली व्हाट विल रिमेन? एक्स स्क्वेयर. आई वांट टू राइट एक्स स्क्वेयर. मैं इधर एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 लिखना चाहता था, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है. एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय नथिंग विल बी देयर प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस सी डिवाइडेड बाय ए is equal to what? 0. Okay, therefore now what we will do, we will transfer this c divided by a to the RHS. What we will get? C x square plus bx divided by a is equal to, now it is plus, it will convert into minus c divided by a. Okay, up to this step, in a doubt, see carefully. Now next step, now adding b upon 2a bracket square on both sides, we get b upon 2a, we will add to the both sides. Now adding
b अपॉन 2a ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, b अपॉन 2a ब्रैकेट स्क्वायर on both sides. Okay, what we are going to add? B upon 2a bracket square on both sides. This is the next step of proof of this formula. This is also very important. We will add both sides. Okay, some of you they may think why we have to add, because we are going to prove the formula of quadratic, this method. Which one? Quadratic formula method. We are going to prove the formula of quadratic formula method. Okay, for that purpose, x square plus bx plus a plus b divided by 2a bracket square is equal to minus c divided by a plus b divided by 2a bracket square. Understood? Got idea? ओके, ये क्यों ऐड किया? इसका मतलब ये है कि ये प्रूफ ऑलरेडी रेडी ऑलरेडी प्रूफ्स है, तो इसमें ये स्टेप्स है, इसलिए हम ये स्टेप्स फॉलो करते जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा. अभी देखो, इधर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो. अभी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? एक्स स्क्वायर प्लस, हियर फॉर दिस मिडल टर्म 2 divided by 2, 2 ones are 2, 2 ones are 2, means what? 1. 1 into this term means same term will come. 1 into this term means same term will come. But I have taken this 2 into 2 into b divided by a into x. सेपरेट किया है देखो, b divided by a into x plus this term as it is, b divided by 2a bracket square is equal to this term also as it is. Only I will change the side. ये term इधर लेता हूँ और term उधर भेजता हूँ. देखो क्या होगा, b divided by 2a bracket square minus c divided by a हो गया. समझे अप टू दिस स्टेप? नेक्स्ट स्टेप देखो, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस, अभी क्या करेंगे देखो, दिस 2 आई विल कीप एज इट इज, 2 into, okay, b also I will write as it is, divided by these 2 I will multiply to this a, 2a into x plus b divided by 2a bracket square is equal to, इस साइड में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज, b डिवाइडेड बाई 2a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस c डिवाइडेड बाय a, एज इट इज है. ये साइड एज इट इज है, ओनली क्या चेंज किया है देखो, इस 2 को, न्यूमरेटर के 2 को एज इट इज रखा है. दिस डिनोमिनेटर 2 इज मल्टीप्लाइड टू दिस डिनोमिनेटर मीन्स 2a एंड रिमेनिंग थिंग एज इट इज, नो चेंज. ओके, नाउ यू सी हियर, केयरफुली यू सी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 into b upon 2a into x plus b upon 2a bracket square. What it indicates? You will see carefully then. a square plus 2 into a into b, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, a into b plus b square, यानी कि ये एक्सपांशन है, a plus b ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन का फॉर्मूला में हम इधर यूज कर सकते हैं. देखो ये a की वैल्यू है और ये b अपॉन 2a b की वैल्यू कंसिडर किया है, 2 into b into a, इधर देखो a इंटू बी, अभी ये आगे और ये पीछे, ये ऐसा हो गया, ये पीछे और ये आगे मैं लिख देता हूँ, तो तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आएगा फॉर्मूला कैसे हम यूज़ करने वाले हैं इधर. ओके, लुक हियर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2 into x into b डिवाइडेड बाय 2a प्लस क्या बोला, b डिवाइडेड बाय 2a ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 2a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस सी डिवाइडेड बाय ए. अभी इधर देखो, ये ए कंसिडर कर सकते हैं हम और ये जो है वो बी कंसिडर कर सकते हैं. तो क्या है देखो, ए स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर, ओके, हम ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 into a into b प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर एक्सपांशन. तो कैसा होगा, एक्स प्लस बी बाय 2a ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर अभी एक्सपांशन करते हैं देखो, बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4 ए स्क्वायर माइनस सी डिवाइडेड बाय ए. क्या किया है समझ में आया, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी डिवाइड बाय ए एज इट इज. देयरफॉर गॉट इट अप टू दिस स्टेप. ओके, अभी क्या करेंगे देखो,
RHS में थोड़े बहुत चेंजेस हम करने वाले। कौन से चेंजेस है, ध्यान से देखो इधर। x प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर माइनस, इधर देखो अभी, इधर 4a स्क्वायर है, इधर ओनली a है। हियर इज व्हाट, 4a स्क्वायर, हियर ओनली a. Suppose I want to make here denominator same. Suppose I have decided to make here what, denominator same. Okay, then for that purpose what should I do? I have to multiply this term numerator and denominator by 4a. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Suppose I want to make here denominator same. डिनोमिनेटर अगर मुझे सेम करना है तो सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, c अपॉन a जो है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मुझे 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, then it will be same, means for like that 4a into c divided by 4a into a. तो इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे. ओके, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया है, 4a से. x प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर माइनस 4ac. क्या है, 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, 4a स्क्वायर. x प्लस b डिवाइडेड बाय 2a ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ यू सी हियर डिनोमिनेटर इज सेम and middle sign is subtraction, that's why we can subtract b square minus 4ac divided by 4a square. Got it up to this step? समझ में आया up to this step? देखो क्या चेंजेस किए हैं, ध्यान से देखो, मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, तुम्हें वो अच्छी तरह से समझ में आएगा. ओके, इधर देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 4, इधर देखो 4a स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर, तो ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा. बी स्क्वायर माइनस साइन बीच में है 4ac, तो डिनोमिनेटर सेम है तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम है होने के कारण सब्ट्रैक्शन कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac. गॉट इट अप टू दिस स्टेप? अंडरस्टूड? ओके, नाउ व्हाट विल डू, लुक हियर, वी विल taking square root of the both sides, taking square root of both sides we get. Okay, take square root of both side, a b a x plus b अपॉन 2a ब्रैकेट स्क्वायर है तो ओनली क्या बचेगा, x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू, इधर क्या होगा देखो, ध्यान से देखो, बी स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है देखो, इधर बीच में माइनस साइन है, तो हम कैसे लिखेंगे, कभी भी स्क्वायर रूट निकालने के बाद दो वैल्यूज़ मिलती है हमें इसकी, प्लस और माइनस. इधर ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इन द स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने एज इट इज़ रखा है, ये सिर्फ स्क्वायर रूट साइन में लिख दिया है, डिवाइडेड बाय, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है a. समझे क्या किया है? ओके, नेक्स्ट. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ट्रांसफर दिस b अपॉन 2a टू द RHS. x इज इक्वल टू, अब ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस b अपॉन 2a प्लस और माइनस इन द स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये जो प्लस और माइनस साइन है ये सिर्फ इसको ही है, डिवाइडेड बाय 2a. ये डिनोमिनेटर को क्यों नहीं है, क्योंकि इसका ऑलरेडी स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया है, ये सिर्फ स्क्वायर रूट साइन में हमने लिखा है. समझे? नेक्स्ट, नाउ यू सी, यू विल सी कम टू नो दैट here and here what is there, if you will see carefully then denominator is what, same, denominator is same. ये समझने के लिए मैं एक दूसरी स्टेप में भी ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ये बीच में प्लस और माइनस साइन लिखेंगे तो तुम्हें अभी समझ में आएगा. देखो 2a इज द सेम डिनोमिनेटर, तो ऐसे हम एक साइन में लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस और माइनस इन द स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. क्या किया है देखो, माइनस बी प्लस और माइनस इन द स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. आर गेटिंग?
समझ में आ रहा है? ओके, तो ये एक्स की वैल्यू है, किसकी वैल्यू मिली हमें? एक्स की वैल्यू, एंड एक्स की वैल्यू इज नथिंग बट सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये इधर देखो प्लस एंड माइनस है, प्लस और माइनस है, दोनों में से एक लेना है, तो हम सेपरेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, हियर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, एक हो गया, प्लस, समझ में आया, और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस इन स्क्वायर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि ए एक रूट हो गया और एक दूसरा रूट हो गया, एक प्लस से रिलेट करता है, दूसरा माइनस से रिलेट करता है, समझे? ओके, दिस इज नोन एज फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक मेथड। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस इन द स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं, दो रूट्स के हिसाब से, समझ में आया? ओके, डू यू अंडरस्टैंड? तो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज एक एग्जांपल में इधर दिखा देता हूँ, ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है इस एग्जांपल में मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ओके, ध्यान से भी देखो, एग्जांपल तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आएगा तो तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। इधर देखो एग्जांपल मैंने लिखा है, यू विल कम टू नो दैट दिस एग्जांपल व्हाट इज दैट, हाउ टू सॉल्व दिस एग्जांपल। दिस इज़ वन सिंपल एग्जांपल एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एग्जांपल्स। इस टाइप के एग्जांपल जो हमने लास्ट वीडियो में मैंने देखे, वैसे सेम टाइप का एग्जांपल है, लेकिन लास्ट वीडियो के एग्जांपल, previous all examples we have tried to solve by using factorization method. Now I am going to show you this example by using quadratic formula method. Okay, read example, you will come to know that what is this example. Look here, the area of a rectangular plot, the area of a rectangular plot is 5 to 8 यानी कि 528 meter square. The length of the plot in meters is 1 meter more than, is 1 more than, is 1 meter not, is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. यानी कि पहला जो एग्जांपल चैरिटी ट्रस्ट का हमने एग्जांपल देखा था लास्ट वीडियो में, इसी टाइप का सेम है, कंडीशन भी इधर सेम ही है, इधर भी हमें लेंथ और ब्रेड्थ ही फाइंड आउट करना है, एरिया ही दिया है। ओके, तो लेंथ अगर हमने इधर ब्रेड्थ कंसिडर की तो लेंथ हमें इजीली मिल जाएगी, उसी तरह से फॉर्मूला हम बनाएंगे। सी यार सॉल्यूशन, let us consider the breadth of, let us consider the breadth of a plot। मैंने ब्रीथ क्यों कंसिडर की? देखो इधर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, यानी कि ब्रीथ मालूम है तो लेंथ इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। लेट अस कंसिडर द ब्रीथ ऑफ प्लॉट B. Okay, let us consider the breadth of the plot. Let us consider the breadth of the plot is what? X meter. Then the length is, then the length is what? 1 more than twice its breadth. यानी कि देखो twice its breadth means 2 into x plus 1 more than means 1. Got idea? Means what you will get? 2 into x, 2x plus 1 मीटर। अंडरस्टूड? देखो इधर मैंने क्या किया, लेट अस कंसिडर द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट बी एक्स मीटर, देन द लेंथ इज 2 इंटू एक्स प्लस 1 मीन्स 2x plus 1 मीटर। अंडरस्टूड? बाय यूजिंग दिस विल सॉल्व दिस। नाउ वी विल यूज our regular point. Regular point means we know that very well. What we know that area of this rectangular plot, the area of the rectangular plot is 5 to 8 meter square, means area is given over here, and by using this area we are going to find out the length and breadth by using which formula? Quadratic formula method. Now by given condition, now by given condition, what is given condition? Area of rectangular plot, area of rectangular plot is equal to, this is length, this is breadth, 2x plus 1 into x. Okay,
but area of rectangular plot is given in this example. If you'll see carefully, you will come to know that what is given. Look here, 528 meter. Here we will put it 528 is equal to, we will multiply this 2 into x, 2x square plus x into 1 x. Now we will get here one quadratic equation, 2x square plus x, okay, is equal to 528. समझने के लिए ऐसे लिखा है, अभी ट्रांसफर करूँगा 2x स्क्वायर प्लस x, इट विल कन्वर्ट इनटू माइनस 528 is equal to 0. Here I got one quadratic equation. In the previous example what we did, here we have used factorization method. Now we are going to use which method? Quadratic formula method. But while using quadratic formula method, we are going to change here something. We are going to change here something means here we are going to follow some different steps. Which is the first step? Look here. First of all, we have to compare these. Listen carefully. First of all, we have to compare this given quadratic equation or the quadratic equation which we got. We have to compare with standard form of a quadratic equation. And after comparing with standard form of a quadratic equation, we have to find out the value of a, b and c. And by using those values of a, b and c, we have to use their quadratic formula. Okay. Means what we will do? Comparing, what I said? Comparing above equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. We get comparing above equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. We get, कंपेयर करो x स्क्वायर a, और इधर क्या है a की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू बन गई 2. x b की वैल्यू क्या हो गई? b इज इक्वल टू 1, कॉमा c इधर प्लस साइन इधर माइनस साइन है तो माइनस साइन लिखना पड़ेगा. c इज इक्वल टू माइनस c की वैल्यू क्या हो गई? 528. Understood up to this step? Got idea? Now we are going to use, by using quadratic formula, we get, now by using quadratic formula, we get, here we will use quadratic formula. What is the quadratic formula? You know that very well. X is equal to, I told you in the proof I have shown you, x is equal to minus b plus or minus in the square root b square minus 4ac divided by 2a. I will write here by using quadratic formula. इसके बाद हमें क्या करना है? फॉर्मूला यूज करना है. x is equal to minus b plus or minus in the square root b square minus 4ac divided by 2a. अभी पुट करो वैल्यू, ए बी सी की जो वैल्यू हमने निकाली है इधर, वो वैल्यूज हम पुट करेंगे. ए की वैल्यू देखो, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 528. पुट हियर, व्हाट यू विल गेट? सी. ओके, यू विल कम टू नो दैट विच टाइप ऑफ आंसर वी विल गेट हियर. माइनस बी की वैल्यू हमें क्या मिली थी? 1 प्लस और माइनस, अगर एक बात ध्यान से देखो इधर, माइनस बी की वैल्यू प्लस 1 है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है -1. अगर बी की वैल्यू माइनस है तो ब्रैकेट में -1 लिखना पड़ेगा. इन द स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी मिली थी हमें? 2 इंटू सी की वैल्यू माइनस 528. ये सारा स्क्वायर रूट साइन में ही आना चाहिए. डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू हमें क्या मिली थी? 2. Therefore x is equal to -1 प्लस और माइनस इन द स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अभी देखो माइनस इंटू माइनस, ध्यान से देखो इधर 1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस. ओके, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 528, 8 इंटू 528 अगर करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 4224 डिवाइडेड बाय 4. ओके, ये सारा स्क्वायर रूट साइन में ही होता है, ध्यान से देखो. देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस
इन द स्क्वायर रूट 4224 4224 डिवाइडेड बाय 4। अब इधर देखो, इधर हम एडिशन कर सकते हैं 1 + 30 मीन्स हमें क्या मिलेगा 4225 डिवाइडेड बाय 4। गॉट अडॉप्ट दिस स्टेप। ओके, द नेक्स्ट देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस। अभी ये इसका अगर स्क्वायर रूट निकल सकता है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगर स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है तो ऐसे दो फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और परफेक्ट स्क्वायर बाहर और बाकी का बचा हुआ अंदर निकला है, अंदर लिखना है। ओके, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी 4225 का स्क्वायर रूट निकलता है, 4225 का स्क्वायर रूट है 65 डिवाइडेड बाय 4। देयरफॉर अगर निकल नहीं रहा है तो एज इट इज रखने के बजाय क्या करना है, ऐसे दो फैक्टर्स उसके हमें खोजने हैं। अगर वो ऑड नंबर है यानी कि अगर वो प्राइम नंबर है उसके फैक्टर नहीं निकलते, एज इट इज रखो। इधर इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, स्क्वायर रूट के बारे में। अगर फैक्टर निकलते हैं उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल सकता है तो दो फैक्टर ऐसे ऐसे निकालो उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर हो और परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल के बाहर लिखो और बाकी का नंबर अंदर लिखो। ओके, x इज इक्वल टू, अभी इधर दो तरफ हम कर सकते हैं। देखो -1 एक बार हम +65 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4 और ओके और दूसरी बार क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 -65 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4। ये प्लस और माइनस कैसे हो गया, एक बार प्लस और एक बार माइनस, बीच में का ही साइन ओनली चेंज कर सकते हैं हम। देयरफॉर x इज इक्वल टू, अभी पहला आंसर क्या आएगा देखो 65 - 1 64 डिवाइडेड बाय 4 और x इज इक्वल टू 65 - 60 65 -1 -66 डिवाइडेड बाय 4। अगर डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हो सकता तो एज इट इज़ रखेंगे। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा 16 और इधर क्या मिलेगा x इज इक्वल टू -33 डिवाइडेड बाय 2। अभी ये देखो x की जो वैल्यू है, x यानी कि क्या है, देखो इधर x यानी कि ब्रीड्थ है। ब्रीड्थ कभी भी माइनस में हम नहीं लिखते, तो ब्रीड्थ माइनस में नहीं लिखते तो ये कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, बचेगा क्या एक ए। ओके, देन ब्रीड्थ इज 16 मीटर एंड लेंथ इज, लेंथ देखो इधर 2x + 1 2x + 1 दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखो 2 × 16 + 1 दैट इज इक्वल टू 32 + 1 दैट इज इक्वल टू 33 मीटर। ओके, यानी कि लेंथ ऑफ दैट रिस्पेक्टिव रेक्टेंगुलर प्लॉट इज व्हाट 33 मीटर। समझे? ओके, तो ये एग्जाम्पल के हमने, ऐसा एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देखा है। ये एग्जाम्पल मैंने देखा है, देखो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एग्जाम्पल है। इधर हमने वो ओनली क्या चेंज किया है, देखो इधर तक हमने सारी बातें वही की है, इधर तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक। उसके बाद जिधर हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते थे उधर हमने कौन सी मेथड यूज़ किया आज, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ओके, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड में क्या करना है, देखो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद पहले a² bs + c से गिवन इक्वेशन कंपेयर करना है, बाद में a b c की वैल्यूज़ निकालनी है और बाद में फार्मूला लिखना है। फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये है फार्मूला, ये फार्मूला लिखना है, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। इधर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसमें। इधर अगर स्क्वायर रूट निकलता है तो निकालो, नहीं निकलता है ओके स्क्वायर रूट निकलता है तो निकालो। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए 8th स्टैंडर्ड में तुमने एक मेथड स्टडी की थी, कौन सी, डिवीजन मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। वो डिवीजन मेथड इधर यूज़ करनी होती है। डिवीजन मेथड से अगर स्क्वायर रूट निकलना है तो निकालो, नहीं तो दो ऐसे फैक्टर्स निकालो, उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालो और बाकी का नंबर अंदर स्क्वायर रूट में वैसे के वैसे लिख सकते हो। इधर हमें स्क्वायर रूट मिल गया है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने ये निकाला और इधर हमें आंसर मिल गए x इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू -33 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ भी मिल गई। समझ में आ गया? ओके, ऐसे हमें ये सॉल्व करना है। अंडरस्टूड? आई होप्स यू गॉट आइडिया अबाउट इट। मैंने तुम्हें इसका जो प्रूफ है वो प्रूफ कैसे सॉल्व करना है वो भी बताया है, ध्यान से देखो और
सोचो, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ. ओके, रिमेनिंग पॉइंट्स विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.